या क्या आंसर है इसका? क्विक आंसर दीजिए। Yes, sir. हम्म, The velocity 0 and at initial velocity 0 and acceleration 2 meter per second. and at the end of 2 seconds. The acceleration is a constant, so it is 2 meter per second square, and velocity is 4 meter per second. What about others? First what we have to do, differentiate, है ना? इसको differentiate कर देंगे dx by dt t के respect में। t square का differentiation with respect to t will be what? 2t. So this dx by dt को what we can write? v. तो velocity का function मिल गया हमें 2t, then at t is equal to 0 initially means 0. V will be 2 into 0, that's 0, and at t is equal to 2 seconds, V will be 2 into 2, that's 4. ठीक है? Velocity both the parts have been done. Got it? Now acceleration. For acceleration, what we have to do? First we have to get the function of acceleration. Acceleration का function चाहिए अभी. What to do? How to do? Velocity को time के respect में differentiate करें. Yeah. Differentiate कर दो इसको velocity का function है. Again with respect to t. dv by dt. इधर क्या आएगा? 2 into differentiation of t with respect to t. dt by dt क्या हो जाएगा? 1. You are not responding. Children, are you getting this? यहाँ पर जैसे हमने टी स्क्वायर का किया 2t आ गया. And we are not writing, just one step we are reducing. देखो ऐसे, ओके हम लोग कैसे कर रहे थे? चलो फिर से देखो, यहाँ पर भी डी बाई डी टी लिखेंगे और टी स्क्वायर लिखेंगे ना. इट कम टू टी. हियर आल्सो यू कैन राइट वन मोर स्टेप. 2 को आगे शिफ्ट कर दिया और v की वैल्यू 2t पुट कर दी. यहाँ पर 2 को आगे शिफ्ट कर दिया, dt बाई dt बचा. t का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t. So 2 into 1, that's 2. dv by dt is called acceleration. A is equal to 2 meter per second square. So it is constant, independent of t, uniform में. At t is equal to 0 also A is equal to 2. At t is equal to 2, A is equal to 2. Both cases में it is same. Can you give me one example of constant acceleration which is not changing with time? Give me one example. Gravity. Yeah, acceleration due to gravity. 9.8 downward है. So at t is equal to 0 also you see it is same. After 1 second, same. After 1 day, and after 10 hours, after 1,000 years, we don't know. But after 100 years, it is going to be same. No change. So time के respect में constant है. Similarly, this is also the case of constant acceleration. Maybe some other planet. Moon पे कितना acceleration है, you know? More than 2 or less than 2? Less than Moon 2, पे sir. G by 6 है ना? Moon पे G by 6. G 9.8 divided by 6 will be close to 1.7 के आसपास आएगा. हाँ, so it is less than 2 moon पे. So not only in planets we can have, not only in that we can have the constant acceleration in moving vehicle also. We can achieve this at different locations, different machines or engines. Anyway, got it? So t is equal to 0 पर भी same है. Suppose you are starting the car with certain acceleration a is equal to 2 and maintaining it throughout. For at least 2 seconds you can maintain, है ना?
and you can maintain for further time also. Any difficulty here in these two parts? Now if I, okay, no problem. All right. Now if I ask you one more part of this question, find average acceleration from 0 to 2 seconds. If, okay, is it okay or something is missing in this question? Itna sufficient hai or it is incomplete? Incomplete. Why incomplete? Direction Why? of motion is not there. Okay, very correct. Direction batani padegi. If object moves in a straight line में मूव कर रहा है, not turning. अगर टर्न हो गया तो फिर we need some more information in which direction it has turned. है ना? All right. So now it's okay. Direction is not changed. Now things are easy. क्या आंसर होगा बोलो? What will be the answer? Average acceleration के लिए you have to go back to the basics. What is the definition of average acceleration? Change in velocity per time taken. All right. तो change in velocity लिखिए फिर कैसे लिखेंगे change in velocity? V2 minus V0 upon. Okay. तो V1 अपने पास है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बिकॉज टाइम इंटरवल आई हैव केप्ट इट सेम. अगर टाइम इंटरवल दूसरा लेते तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ता. तो V1 is 0 and V2 is 4. तो V1 is at t is equal to 0, V1 is 0, and at t is equal to T1 is T2 is equal to 2 seconds, V2 is equal to 4. So average acceleration is equal to V2 minus V1, change of velocity upon time interval T1, T2 minus C1. So 4 minus 0 upon 2 minus 0, that's 2 meter per second square. So देखो, one point you can note, can we draw some conclusion here? Can we draw some conclusion from the third part with respect to second part, first part or second part? Constant acceleration और average acceleration same है. हाँ, uniformly accelerated motion है ये. In case of uniform acceleration, देखिए ये uniform acceleration है. Average acceleration will also be same. Uniform motion में average velocity and velocity same होती है. Uniformly accelerated motion में average value of acceleration and instantaneous value means whatever the constant acceleration is there, both will be same. अगर ये acceleration में कुछ t आ जाता है यहाँ पर, time dependent आ जाता, so it would not be uniform acceleration. So in that case, average value would have been something else, and this value would have been something else. At the end of 2 seconds would have been something else. Sir? Yeah. Sir, is there any case in which acceleration is non-uniform and the motion is uniform? No, motion uniform motion के लिए तो acceleration 0 ही होना चाहिए. How did we define it? Uniform motion means one in which speed is constant while moving in the straight line. In other words, velocity is uniform. In other words, acceleration is 0. Got it? Yes, Acceleration uniform नहीं, acceleration 0 ही होना है. No acceleration should be there. No question of uniform acceleration. Uniform acceleration है तो uniform motion नहीं होगा. If uniform acceleration is there, then it will be uniformly accelerated motion. If acceleration is 0,
then it will be uniform motion. Okay, sir, got it. तो ये देखो, ये if other students have any doubt in this, just can they ask, they can ask. कुछ पूछना है इसमें, बोलिए. How did we do? Could you get this, or could you understand that की average acceleration we have to find out. Average acceleration तो पढ़ा ही था हम लोगों ने. Only thing, acceleration and all we are not done, but यहाँ से हम बोल सकते हैं acceleration is rate of change of velocity. Differentiation से आता है acceleration निकालना है तो average acceleration without differentiation से करते हैं, ये formula से. Got it? Sir, excuse me. Yeah. Sir, Yeah. second part एक बार वापस explain कर दीजिए ना. Second part, which one? This you are asking? Yes, yes, sir. इसको वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू 2t है, तो इसको dv बाई dt निकालना है. तो 2 को तो इधर आगे शिफ्ट कर लिया और क्या बचा t, तो dt बाई dt हो गया. तो t का डिफरेंशिएशन जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, ऐसे t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 आ गया. dt बाई dt, देखो dt dt कैंसिल करते नहीं, एज्यूम कर लेते हैं ना. वो x टू द पावर n वाला फार्मूला, ddx ऐसे x टू द पावर n. कितना आता है इसका, 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो 1 आता है. x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, ऐसे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, तो 2 आ गया. तो dv by dt is called acceleration, rate of change of velocity is called acceleration. तो acceleration 2 मिल गया, that is constant, independent of time. बिकॉज़ टाइम पे डिपेंड नहीं. जैसे वेलोसिटी में क्या आया था, देखो 2t आया था, टाइम के साथ चेंज हो रही थी. देखो ये वेलोसिटी का फंक्शन है, टाइम के साथ इट इज चेंजिंग, बट एक्सीलरेशन के साथ t नहीं है, इट इज यूनिफॉर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो अभी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, t इक्वल टू 0 पर भी वही रहेगा, क्योंकि t तो है ही नहीं इसमें, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इनिशियल भी सेम, आफ्टर द एंड ऑफ 2 सेकंड अगेन सेम, आफ्टर द एंड ऑफ 3 सेकंड आल्सो सेम, बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. कोई फंक्शन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है वो. तो किसी भी टाइम पे देखेंगे सेम है, जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. अभी हम नहीं भी देख रहे तभी भी 9.8 है. अभी तुम अपनी टाइम क्लॉक स्टार्ट करो, t इज इक्वल टू 0 और भी 9.8 है. आफ्टर 2 सेकंड भी 9.8 रहेगा, आफ्टर 1 आवर भी सेम रहेगा, है ना. आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ टाइम इज सेम, टाइम इंडिपेंडेंट. इसका ग्राफ कैसा आएगा एक्सीलरेशन का, यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे टी लेंगे, तो ऐसा कुछ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. लाइन एक्सेस टू लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस. गॉट इट? बोलिए. डन. Shall I move on to the next one? No response coming. Is there any problem in transmission? No, sir. Okay. How to do this question? A curve is represented by y is equal to sin x if x is changed from pi by 3 to this value. Find the approximately the change in y. Use differential calculus. Use all right. Differential calculus से करना है इसको. You can think about this, homework में लिख लो इसको. Think about this question, how to apply the differential calculus in this trigonometry. मैथ में क्या चल रहा है आप लोगों का?
What's going on in math? Okay, very fine. So don't use the trigonometry. Use the differential calculus to get this answer. Don't see the table and all. Table से नहीं करना है. All right. Yes, sir. Moving on to the next one. Chain rule was done. ये क्वेश्चन दिया था देखो. इसको डायरेक्ट कर लेते हैं. अभी कितना आया इसका? इसको थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लो. तो dy by dt sin t का क्या होता है? Cos t. cos t. तो cos t की जगह x स्क्वायर को t एज्यूम किया था, तो x स्क्वायर पुट कर दिया. फिर मैंने क्या बताया, फिर ये जो जिसको एज्यूम किया था उसका डिफरेंस इनटू करके उसका डिफरेंशिएशन लिख देना है. तो 2x, और यू कैन डू इट लाइक दिस, जैसे ये किया था. पहले t को एज्यूम कर लो, t इक्वल टू x स्क्वायर कर लो, फिर dt बाई dx निकाल लो, 2x आ जाएगा. फिर इधर करो, तो इस मेथड से भी करो तो सेम रिजल्ट आएगा. डायरेक्ट कर दिया तो सेम रिजल्ट. व्हाट अबाउट दिस साइन स्क्वायर एक्स? तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे. तो अभी ये किसके इक्विवेलेंट है? ये जो इसको हम किसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर के फंक्शन से, है ना, एक्स टू द पावर n वाले के इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसको t मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t. चलो करते हैं यहाँ पे dy बाई dt, नहीं dy बाई dx लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग. तो हमने केवल एज्यूम किया, बाद में वैल्यू भी पुट कर दी. तो इसको t एज्यूम करके t स्क्वायर हो गया, उसका 2t आ गया, और t की वैल्यू साथ में पुट भी कर दी sin x. नाउ तो किसको t माना था? sin x को, उसको भी डिफरेंशिएट करके लिखना है बाद में. sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x. तो फाइनल आंसर क्या है? 2 sin x cos x. That's all. All right, बोलिए. Yes, sir. तो बस दिस मच इज एनफ. इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को इसमें, है ना? नोट कर लो, एंड यू कैन ट्राई विद दिस फर्स्ट मेथड आल्सो, जो हमने ये इससे भी करके देखना, सेम आ जाएगा. Okay, now moving on to the next part of the calculus. Let's see. अच्छा, ये क्या होता है? Can you do you know? ये किसका एक्सपेंशन है? Sin 2x. इसको sin 2x लिख सकते. होगा ये फार्मूले आपको? होने के हैं अभी? चालू है All सर. right. Okay. So it is nothing but a sin 2x, but I am not writing because that formula you should know. तो ये सब क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं. Now, as I told you, vectors का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. If it is variable vector, constant vector है तो कुछ नहीं कर पाएंगे. ये दिया था मैंने होमवर्क, ये आ गया आपका? Yes, sir. प्रोडक्ट रूल लगेगा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. तो d बाई डी पी कर लेंगे, p इंटू वी, इधर भी d बाई डी पी, ब्रैकेट में कांस्टेंट. तो राइट साइड में तो 0 हो जाएगा. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में भी 0 हो जाएगा. इधर क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट टर्म इज u, सेकंड टर्म इज v. आपको सेकंड टर्म इज v, है ना, v, बट ये v वॉल्यूम वाला है. एनीवे u v नहीं लिख रहा हूं मैं. ओके, क्या फार्मूला है? फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म.
डी बाई डी पी इंटू वी, वी का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में, एंड सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू पी है ना। राइट साइड में क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कल बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, P इंटू डी वी बाई डी पी हो गया, ये ऊपर V है नीचे P है, तो डी पी बाई डी वी लिख देंगे इसको। ये है इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ओनली थिंग P को क्लोज लिख दिया चाहे यहाँ पर। और ये क्या होगा, डी पी बाई डी पी विल बिकम 1, P के रिस्पेक्ट में जैसे x का 1 हो तो P का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे V इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें ये टर्म इधर भेजना है, V को इधर ही रखो, सॉरी क्या करते हैं, अभी V को इधर भेज दो, P इंटू डी वी बाई डी पी, V इधर जाके माइनस V हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो dp को इधर ले आओ, dv को नीचे ले आओ, ये ओके, एक मिनट, dv बाई dp माइनस v बाई p, दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, अभी दोनों तरफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये माइनस p बाई v होगी, तो दैट इज व्हाट इज द प्रूफ जो रिक्वायरमेंट था अपने, बोथ साइड वी हैव जस्ट इंटरचेंज या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिल जाएगा। गॉड, समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. Okay. Any difficulty so far? So आपने Yeah. इसमें फॉर्मूला लगाए हैं क्या या प्रोडक्ट या डिवीजन का? फिर से बोलिए, फार्मूला फॉर्मूला लगवा, ये वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए हैं क्या प्रोडक्ट या डिवीजन वाला? हाँ, ये प्रोडक्ट है ना, देखो P इंटू वी है ना, प्रोडक्ट टूल, U इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस V इंटू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म वाला प्रोडक्ट है ना, देखो, और P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, if one thing goes up second thing comes down, तो both are variable, कांस्टेंट नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि P कांस्टेंट V वेरिएबल, ऐसा नहीं, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों जो है, तो दोनों एक बार एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को एज इट इज रखेंगे, प्रोडक्ट टूल में यही होता है ना। Any other doubt? बोलिए। डन? किसका आ गया था? Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे आगे, कितना आंसर आएगा बताइए? 25.14 meter per second square. ओके, 25.14, others not done, तो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे 4, ओके, 4 पाई बाई 3 एज इट इज, यहाँ पर नीचे आर डी आर से डिवाइड आर क्यू एज इट इज,
तो dr से मल्टीप्लाई dt को आगे शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज 4 पाई बाई 3 और डिफरेंशिएशन ऑफ r क्यूब with respect to r will be 3r square। ठीक है, बस अभी क्या करना है बोलिए। 3 has gone, 4 pi, what next? r की वैल्यू दी है 2, तो 2 स्क्वायर हो गया ये। r is given, dr by dt is given, yes, ये भी दिया, देखो dr by dt 0.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20, कितना आया 20? 5.14 14 यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो यूनिट बराबर होनी चाहिए। वॉल्यूम पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर क्यूब, सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो इज डिनोटेड बाय मीटर क्यूब पर सेकंड। लिक्विड फ्लोइंग और फ्लूइड फ्लोइंग per unit volume is called rate of flow. All right, बोलिए। Then no response is coming. Yes, sir. No response is coming. Clear or not? Yes, sir. कुछ बहुत धीरे से रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मीन्स यू हैव सम डाउट। बोलिए आकांक्षा, समझ में आया? अनिका, आर यू देयर? Yes, sir. अगेन वेरी स्लोली यू आर रिस्पॉन्डिंग। क्या प्रॉब्लम है बोलो जल्दी से। Difficulty जा रही है। डिफिकल्टी जा रही है, तो इस तरह से हमें वेरियस चैप्टर में लगाना पड़ेगा। ये फिजिक्स में मैथ्स है, मैथ्स नहीं है, मैथ्स है क्या? हाँ, तो मैथ्स का भी बहुत दिनों के बाद कराया जाएगा। बाय द टाइम ये तो इसमें तो दिया था ना, यहाँ पर तो एवरीथिंग वाज गिवन टू यू। वॉल्यूम ये दिया है, अपने स्पेरिकल बलून है, उसमें हवा भर रहे हैं हम लोग। एयर इज बीइंग फिल्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस ग्रेजुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज dv by dt, टाइम के रिस्पेक्ट में। when its radius is 2 meter and rate of increase is 0.5, ये कांस्टेंट दे सकते हैं, दे कैन गिव यू कांस्टेंट एंड रेडियस डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन। तो जो दिया है उसको हमने क्या किया, पहले तो नोट कर लिया व्हाट इज गिवन dv by dt, वी हैव टू फाइंड आउट dr by dt इज गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 0.5 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है वो, when radius is 2 मीटर। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ, रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया का निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यस दैट कैन बी फाउंड। वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखा dv by dt, कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लिया। अभी r क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे t है और यहाँ पे r है, तो हमने क्या किया, dt को आगे शिफ्ट कर दिया, dr से डिवाइड कर लिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी r क्यूब है, नीचे भी r है, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम। r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर है, x टू द पावर n वाला फार्मूला है ना। ऑलराइट, तो और यहाँ पे dr by dt रह गया, तो dr by dt 0.5 दिया है, r की वैल्यू 2 दी है, 2 का स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया 25.14। if the answer coming, since it is volume
पर सेकंड है तो मीटर क्यूब मीटर पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर और नॉट अनिका? अभी भी डाउट है? अरे देयर अभी तो और स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और डाउट बढ़ गया क्या? रिवाइज नहीं कर रहे, तुम लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा नोटबुक उठा के रिवाइज करेंगे ना तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, जितना हमने थोड़ा बहुत किया। कौन किसमें डाउट है बताओ ना? यस स्पीक आउट, अदर्स स्टूडेंट आल्सो। पीछे किसी में डाउट है? एक्सेप्ट चेन रूल वाला छोड़ सकते हैं फिलहाल, वो फिजिक्स में नहीं चाहिए। ये आना चाहिए, ये हमारा आगे काम आएगा फिजिक्स में। प्रोडक्ट टूल से किया इसको हमने। ओके लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। आज क्या पढ़ा था? होमवर्क किया हम लोगों ने। ये चेन रूल वाले क्वेश्चन किए डायरेक्ट, उसको एज्यूम कर लेते हैं किसी नॉन फार्मूले से मैच करके, उसको डिफरेंशिएट कर लिया। इसको साइन टी बना के, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, कॉस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज पुट कर दी। नाउ जो यहाँ पर होता है उसका डिफरेंशिएशन करते, जो जिसको एज्यूम करते समथिंग एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो उसको डिफरेंशिएट करके इधर लिख देते। यहाँ पर साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा पूरा, तो टी स्क्वायर बन जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो t यहाँ पर t की वैल्यू साइन एक्स, और जिसको माना था साइन एक्स को, उसको फिर से इनटू करके डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ता है। दिस इज द वे वी हैव टू डायरेक्टली डू। अदरवाइज ये क्वेश्चन किया था उसको हम उसके मेथड से कर सकते हैं, जिसको एज्यूम किया t इधर और यहाँ पे वैल्यू पुट करके इधर डिफरेंशिएट किया dy बाई dt, इधर dt बाई dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या आया था इसमें? ओके देखो यहाँ पर देखो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट साइड से। लेफ्ट साइड में ये आएगा dv बाई dt, और इधर dt बाई dy बाई dt और dt बाई dx आ जाएगा, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx ही बचेगा। इधर इधर वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था। इसके बाद हम लोगों ने वेक्टर्स का नहीं किया हमने, और फिर ये जैसे ये कल किया था, इसमें कैसे किया था? इसको ये दोनों तरफ हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे भी y लाना पड़ेगा dy। तो dy हम अगर हमने नीचे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और dx को आगे शिफ्ट कर लिया हमने, क्योंकि ये आपस कैंसिल होके dx रह जाएगा नीचे ये। तो यहाँ पर y है इसलिए dy से डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, है ना। और इधर तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 2x, तो यहाँ पर साइन y है और नीचे भी y है dy, तो साइन y का cos y हो गया, और ये एज इट इज रहा, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिकॉज हमें यहाँ पे dx आएगा, हमें ये प्रूव करना था। आज जो क्वेश्चन किया ये वाला, इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगाया, बिकॉज क्वांटिटीज है, वेरिएबल्स है। यहाँ पे समझ लो p की जगह x है, v की जगह y है। इस तरह से अगर होता है अपना, अगर अपना क्वेश्चन ऐसे होता है x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ता है? x की जगह p की dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे फिर आपका x बाई y आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा। बट रियल लाइफ में हमें ऐसा नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? x की जगह प्रेशर मिलेगा और y की जगह वॉल्यूम मिलेगा, या कुछ और भी सिचुएशन। ये हमने हीट के चैप्टर का क्वेश्चन उठाया, वहां पे ऐसा सिचुएशन आती है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है उसको, ठीक है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, एक प्रोसेस होता है उसमें, तो P द प्रेशर वी द वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने P के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी पी।
ये ब्रैकेट में रहा, इधर तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, इसमें प्रोडक्ट टूल लग गया। फर्स्ट फंक्शन इज पी, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डीपी आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन को हमने वी आगे कर दिया और पी का डिफरेंशिएशन होगा डीपी बाई डीपी। तो यहाँ पर तो डीवी बाई डीपी रहने वाला है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, डीवी बाई डीपी, ये वी एज इट इज, और डीपी बाई डीपी 1 हो जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बिकॉज एक्स का 1 आता है, ये 1 हो गया। ठीक है, तो वी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो पूछा था वो ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ऑलराइट, तो दिस may be required in the chapter of heat। ऐसे और भी हो सकते हैं, तो हमने ये कल होमवर्क में दिया था आपको। अगर रेडियस है, बढ़ रही है, रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज पता है तो वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीज निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया का निकालना होता तो कैसे करते बोलो? सरफेस एरिया का रेट, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है? सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी लिखते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आता है? 2r आ जाता है, और डी आर बाई डी टी भी आ जाता है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो डी ए बाई डी टी निकालना है, तो 4 पाई 2r का, आर स्क्वायर का 2r आता है, और बैलेंस करने के लिए डी आर बाई डी टी इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस अभी आर की वैल्यू पुट करो, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो, डी आर बाई डी टी ये आर, ये सॉल्व कर सकते थे। तो सरफेस एरिया भी किस रेट से बढ़ा वो भी आ जाता। वॉल्यूम का पूछा तो हमने वॉल्यूम का निकाला, वॉल्यूम का फार्मूला लिख के डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अरे देयर, Yes, sir. Yes. ओके ओके, तो नोट कर लो इसको। नाउ लास्ट टॉपिक इसका मैक्सिमा मिनिमा है। अभी मैक्सिमा मिनिमा का डे टू डे लाइफ में अगर हम एग्जांपल लें, कहाँ पे यूज करने वाले हैं हम इसको, जैसे जैसे ओके, जैसे सपोज इफ आई गिव यू, तुम्हारे पास कुछ वाटर टैंक मैन्युफैक्चर करना है और तुम्हें दे दिया जाए, ओके दीज मेनी किलोज ऑफ प्लास्टिक तुमको दे दी गई है ना, तो तुम वाटर टैंक बनाओ कि सो दैट उसमें वाटर का वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। तो कैसा शेप बनाएंगे, है ना? तो उसमें अगर तुमने स्क्वायर शेप बनाया या सिलेंड्रिकल बनाया या स्फेरिकल बनाया, है ना, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, पर्टिकुलर शेप के लिए उसी प्लास्टिक में से मैक्सिमम वॉल्यूम बना सकते हैं तुम, है ना। तो जैसे अभी ओवरऑल टैंक देखते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल टैंक रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है रेडियस का एंड हाइट का, सो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम पानी उसमें आ जाएगा, जो वाटर कैन बी कंटेन, है ना। तो उसमें क्या होगा, सेविंग भी हो जाएगी उसकी मैन्युफैक्चर की, भाई प्लास्टिक कम लगेगी, है ना। तो इस तरह की डे टू डे लाइफ में एज एन इंजीनियर, एज आपको डिजाइन करना पड़ सकता है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू डिजाइन द सर्टेन थिंग्स सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन हो, मिनिमम स्पेस लगे वहां पर। अभी स्पेस का भी है भाई, मिनिमम अगर सपोज हाइट की लिमिटेशंस हैं, बाथरूम में वाटर टैंक जो लगाते हैं, फ्लैट वाले लगाते हैं, उसमें भी भाई कम स्पेस में ज्यादा, अभी कंडीशंस पुट कर दी गई भाई, ये है इतने स्पेस में हमें करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डिजाइन।
गिवन लेंथ हाइट वॉल्यूम में, गिवन लेंथ एंड हाइट एंड विड्थ में तुम्हें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कराना है। तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको मैक्सिमा मिनिमा बोलेंगे हम लोग। वी कॉल इट मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, है ना। जैसे दो पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगा, उनके मासेस कितने ले हम, है ना। अगर तुम्हारे पास सर्टेन सिलेक्शन है ना, जैसे एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड में भी, जेईई एंड नीट में, एक मास है, सपोज इतना तुम्हारे पास क्ले है, वेट क्ले है, सपोज यू हैव 10 ग्राम और 10 केजी का क्ले है तुम्हारे पास, 10 केजी, उसमें से कितना हम रिमूव करके नियर बाई रखें। सम पार्ट यू आर रिमूविंग इट 10 केजी में से, है ना। तो कितना रिमूव करके यहाँ पे रखे तो फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए चार्ज दिया होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए मास दिया होगा, है ना। सपोज ये मास है, उसमें से कितना मास हम निकाल के, इसमें से 10 केजी में से कितना निकाले, सपोज 2 केजी रखा है यहाँ पर, इसमें से 8 केजी रह जाएगा, 8 एंड 2 केजी का मैक्सिमम फोर्स लगेगा कि 3 केजी निकालना पड़ेगा तब मैक्सिमम फोर्स होगा, या 4 केजी निकालना पड़ेगा उसमें से तब मैक्सिमम फोर्स होगा, या 5 केजी निकालना पड़ेगा, है ना। तो लाइक दिस क्वेश्चन कम्स आर वी आर यूजिंग इन वेरियस चैप्टर्स। मैक्सिमम करंट कब होगा, है ना। अगर तुम्हें दिया जाए रेजिस्टेंस, यू हैव सो मेनी, मतलब दिस, ये रेजिस्टेंस है, तो बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस की, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो, तो वहां भी मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। तो लेट्स सी, पहले हम जनरल पढ़ लेते हैं, एक्स एंड वाई के टर्म में पढ़ लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, फिर हम फोर्स का निकालेंगे। जो भी मैंने सिचुएशन बताई ना, एक मास है आपके पास, उसमें से कितना मास निकाल के नियर बाई रखना है, सो दैट दे अप्लाई द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो मैक्सिमम मिनिमा, सपोज वी हैव सर्टेन फंक्शन, सपोज हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ऐसा कुछ है। तो उसका ग्राफ हमने ड्रा किया, ऐसा कुछ आ गया, है ना। तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है हमें, यहाँ पर मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है। तो इनको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। एक मैक्सिमम यहाँ पर है, एक मैक्सिमम यहाँ पर है ना। एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, एक यहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू भी है। हो सकता है ऐसे कुछ ग्राफ आके फिर ऐसे हो, मिनिमम वैल्यू भी 2 2 हो जाए, है ना। तो दे आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो एट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, अगर हम स्लोप, अगर हम वहां पे टेंजेंट डाल लें, एक लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ किया वहां पर, तो हॉरिजॉन्टल आ रही है वहां पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। स्लोप को क्या बोलते हैं, dy बाई dx। तो एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा of the curve, slope is 0. Slope is nothing but dy by dx. Beginning of this chapter हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर dy by dx 0 है, यहाँ पे dy by dx is 0। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन पर dy by dx 0 होता है, y चेंज ही नहीं होता, x तो चेंज हो रहा है। देखो इधर तो जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे लोकली वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वो dy 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर। एक्स तो बढ़ता रहेगा, बट वहां पे वाई धीरे धीरे बढ़ के फिर लोकली थोड़ी देर रुक जाएगा बढ़ना, फिर नीचे आएगा वाई। तो dy की वजह से 0 हो रहा है रेशो, बिकॉज dy इज बिकमिंग 0 एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो लोकल मैक्सिमा पर, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पर जो है dy बाई dx 0 होता है। क्लियर। तो दोनों जगह अगर 0 है dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन 0 आएगा उसका वहां पर। तो ये कैसे पता लगेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है? हाउ टू गेट द मैक्सिमा और मिनिमा, हाउ टू फाइंड आउट वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, बिकॉज बोथ द प्लेसेस dy बाई dx इज 0। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करके हमें पता लगाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है वहां पर। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन से हमें आइडिया लग जाता है कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा। कैसे आइडिया लगता है, तो देखते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो dy बाई dx तो 0 ही है, मैक्सिमा पर भी मिनिमा पर, दोनों पर। सेकंड डेरिवेटिव करो,
d2y बाय dx स्क्वायर। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये जो फंक्शन आया है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट के राइट साइड में कुछ आएगा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ते हैं, d2y स्क्वायर ही है, वो ऊपर ही है, वो स्क्वायर है, बट स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता उसको, d2y बाय dx स्क्वायर, और इसमें बीच में स्क्वायर है, इसमें लास्ट में स्क्वायर है। तो दैट इज द कन्वेंशन वे ऑफ राइटिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो उसको डिफरेंशिएट करो और देखो कि उसकी वैल्यू कितनी आई। उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आई, सेकंड डेरिवेटिव कर लो और उसमें कुछ वैल्यू पुट करनी है एक्स वाई की, वो भी पुट कर दो, उस पर्टिकुलर लोकेशन की एक्स एंड वाई दिया होगा तो वो पुट कर दो। फिर देखो कि सेकंड डेरिवेटिव 0, 0 मीन्स नेगेटिव को, आई मीन लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमम होगा। देन that point of the curve will be local maxima। तो मतलब मैक्सिमा में मिनिमम वैल्यू आती है, देखो मैक्सिमा में क्या हो रहा है, कम वैल्यू आ रही, लेस वैल्यू आ रही, निगेटिव आ रही, 0 से भी कम आ रही, तो उल्टा चल रहा है। मैक्सिमा में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिनिमम आ रही, सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से कम आ गया, निगेटिव आ गया, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और मिनिमम में क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा। कंडीशन फॉर मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव, तो इसमें भी 0 ही रहने वाला है ना। और ये स्लोप ओरिएंटल हो रहा है, ओरिएंटल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो वो जो तो कॉमन ही है दोनों में, बट उसका जो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे सब वैल्यू पुट करके, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू होती है। इन दैट केस दैट पॉइंट विल बी मिनिमम। तो मिनिमम पॉइंट होने के लिए सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग मोर, उल्टा चल रहा है। सेकंड डेरिवेटिव अगर मोर आ गया, मोर देन 0 आ गया, तो वो लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, लोकल लोएस्ट। उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जैसे अगर हम ये वैल्यू लेने हैं 1, यहाँ पे 2 लेने, तो ये x इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे हमें मिनिमा दिख रहा है, x इज इक्वल टू 2 के लिए मैक्सिमा दिख रहा है, x इज इक्वल टू 6 के लिए फिर से मैक्सिमा दिख रहा है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर कम आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो वो मैक्सिमा है। मैक्सिमा में कम आती सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, मिनिमा में ज्यादा आती, उल्टा चल रहा है। ठीक, तो बस इतना है, दिस मच। अगर सेकेंड डेरिवेटिव फिर से 0 आ गया तो तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब वो फ्लैट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर देखो, ये किस पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है, फ्लैट लाइन है वो, नीचे लिखा मैंने, देखो, कैन यू सी। If second derivative is also 0, then neither maxima nor minima। ठीक है, तो इतना करना है आपको, बस डिफरेंशिएट करना है और फिर सेकंड डिफरेंशिएट करके देख लेना है कि क्या आ रहा है। इसका एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और एक होमवर्क में दे रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज ओवर। The only thing you have to know proper differentiation again। देखो, चलो नोट कर लिया। जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कहाँ गया ये वाला, ये फंक्शन दिया है आपको और ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू दिस मच। तो करना क्या है हमें, पढ़ो क्वेश्चन को, जस्ट रीड इट। करना क्या है, फाइंड द लोकेशंस ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकेशंस निकालनी है, x एंड y, x की वैल्यूज निकालनी है, कौन कौन सी x के लिए वो मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है।
या दोनों हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज के लिए दोनों आ सकते हैं, एक के लिए मिनिमा आएगा, एक के लिए मैक्सिमम। कैसे करें फिर इसको? इसमें लोकेशन निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। बोलो, ऊपर तो हमने सीखा ही नहीं एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएट तो, हाँ पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर आइडिया लगाते हैं। चलो पहले डिफरेंशिएट करो फिर सोचते हैं क्या करना है। तो dy/dx बताओ कितना आएगा? एक्स क्यूब का क्या आएगा? स्क्वायर माइनस 3x 3x square स्क्वायर minus माइनस 3 को आगे शिफ्ट करके एक्स स्क्वायर का कर लो। एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। तो 3 ऑलरेडी एक है और 2x माइनस 6x आ जाएगा। और इसका x का, और सॉरी 6 का 0 0 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, प्लस के बाद है वो इंडिपेंडेंट, उसके साथ x कुछ x वगैरह नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो डिफरेंशिएट तो कर दिया हमने, अभी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ढूंढना है, उसकी लोकेशन ढूंढनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी क्या करें? एट लोकल, अभी क्या करें? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा अभी। तो लोकल मैक्सिमा पर और लोकल मिनिमा पर ये 0 होता है, तो लिखेंगे उसको एट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx इज 0। ठीक है, ये थोड़ा आपको कहीं कहीं कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, लॉ ऑफ कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पर। 0 देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0 इज इक्वल टू 3 तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचा। इसमें भी x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसको बाद में इसको भी 0 से कम इक्वेट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को चेक, आएगा। सॉरी अच्छा हमने ओके 3 कॉमन लिया तो अंदर 6 अंदर जो है ओके 3x था
Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, sir. कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या चल रहा था? जस्ट रिसेंटली डिस्कनेक्टेड और पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया था? ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी नो. मोहित सर, आर यू देयर? कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था? Are you there? Kiran, can you hear me? Sir, वो x is equal to c. यहाँ पर, here, हाँ, उसके थोड़ा पहले. उससे थोड़ा पहले. अच्छा, ठीक है, फिर कल करते हैं इसको शुरू से हम. You try to do, your question is in front of you. ठीक है, तो इसको देखो करके, फिर कल हम पूरा डिस्कस कर लेंगे फिर. All right? Yes, sir. Okay.